special thanks to FICCI, Dr. Panda, who has a very soft corner for Odisha. So I was just telling that we can claim some portion of FICCI because they should never say no to us. So with all these ladies and gentlemen here, I feel very honored and privileged to be addressing on the road safety issue. Odisha has become a partner state because we think that road safety is our priority. It's not just because it's an economic issue, as it was said, around 3.5% of GDP it gets affected. Not just because it is about the statistic issue, because the numbers are very glaring at us, but it is about the human issue. Odisha believes that every life matters when we care for every life. So that makes us be partner in such efforts, and all of us together only we can make the change. Some weeks back, I think ICAT had an event in which we couldn't participate. Some of our field officers and the nodal persons joined and shared their best practices, but either me or Mr. Amitabh Thakur couldn't join, though we had the invitation. Why we couldn't join? Because he was in the spot of the train accident, Vanaga, and I was in the control room. And what was the incident? There was a tragic accident, and around the figures goes around 290 approximately people died in that fatal accident. And it was a national news. All of you know that incident, right? Not only here, it was a global news, and the picture went everywhere. And the numbers which we are seeing here is like 415 every day in India, and maybe for a month around 400 in Odisha. So, maybe every day we are having a Vanaga accident. Every month we are having a Vanaga accident. But it doesn't draw that much of attention. Maybe that is first thing I would like to bring to the center of the discussion, that sensitiveness, that commitment that road accidents are important and they are affecting every one of us. That is what need to be brought as a course of discussion. We were talking various issues, and I am happy that because of this meeting, knowledge paper also has come out, and it will give a lot of insight into the issue. And already Mr. Pandey said it is not about the superstitious belief, or it is not about to do the same in the government sector in a different way. Of course, and this is a big change which has been happening in the last 8-9 years, where the bureaucrats also think like corporates. Not everyone, but many of them these days. And of course, साहू जी आप आई हैं और आपने इसमें नवीन दा का अपनी सरकार का प्रतिनिधि रूप में आई हैं. अमिताभ जी आप भी हैं, आपसे मेरा पुराना परिचय है. और ये विषय मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसा आयोजन है, I organize such an event in Delhi which is possibly the only of its kind in the world, where parliamentarians get together to talk on road safety. It's the biggest event organized in the country, and most of the time we think कि जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ कुछ नहीं होता है. मतलब these things only happen with people who are on the streets and on the roads. So I would like to flag something which may not be in the eyes of most of these people who are sitting here, and not even in the nation, and that is what we do every year. We conduct a national program to make politicians aware that they are also not above such accidents. And in a country, if you have to talk, can you imagine a former president of India dying in a car accident? Are you aware? One of the former presidents of India, Yani Zain Singh, died in a car crash. Not many people know that. We had a sitting union, Mr. Gopinath Munde. Many people, because we have a list of about 60 members of parliament who were known till yesterday and very popular and very famous, and all of them we lost in car accidents. I'm not talking about the number of people who may have died, who may have met with accidents who are politicians. Even if you have to talk about the present defense minister or the former home minister, he also had a very amazingly crash which he survived. And I can tell you of at least 300 cases which we have compiled of politicians who have survived the crash. If you have to read out the list, it is long.
I remember when I was elected in 1996, this is my 30th year in Parliament, possibly a very long time to be in Parliament. I got a call at about 2:30 in the morning. No, this was in 2001 when I was the Civil Aviation Minister. And there was a gentleman called Mahendra Singh Bhati. And he was a young member of Parliament from Rajasthan. So a message came which is very relevant for all of us to understand. As a policy making, I think we have to think it the other way around, and the policymakers have to play a very big role, because we did not start with roads, and the concept of roads in India is a beginning of making arcades. So we make roads, and for all the shops to open their doors to the roads, and this is the concept in India. Fundamental flaw is in the thinking of policymakers. आज तक जितनी सड़कें बनी है वो सड़क बना देते हैं, और सड़क का मतलब है कि यहाँ पर हम दुकान खोलेंगे, मकान खोलेंगे, चाहे वो शहर के भीतर हो या शहर के बाहर हो, या हाईवे जोन्स का मतलब हाईवे सरकार बनाती है, इसलिए बनाती है कि वहां पर मेरा शोरूम खुल जाए, मेरा महिंद्रा का शोरूम खुल जाए, मेरा फलाना खुल जाए, और सब गतिविधि भारत की इस बदहाली में आज तक सब कुछ हम लोग सड़क पर ले आते हैं। ये फंडामेंटल पॉलिसी लेवल पर एक बड़ा फ्लॉ है, और हाउसिंग कॉलोनीज के भी घरों के भी हर कोई आदमी समझता है कि सरकार जो सड़क बना रही है, the road which is being made for me to open my access. And the biggest flaw is there, which has been happening for last. So it started during Vajpayee's term. We started about Golden Quadrilateral. We talked about North and South Corridor and all these things. And that was the beginning of how roads should be made in India. भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिशियंस के साथ कि हम नए चीज का आविष्कार तो करते नहीं है, लेकिन पुराने अच्छे चीजों को भी कॉपी करने में बहुत खराब है। दिल्ली में आज तक पूरे भारत में हम सब भारत की सरकार और हम सब लोग पूरे भारत को चलाते हैं, लेकिन हम लोगों में से जितने ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, जितने पॉलिटिशियंस आए हैं पूरे भारतवर्ष में, हम लोगों ने न्यूटन्स डेली को तो रेप्लिकेट नहीं किया है। कहीं आप बताएं भारत में भी हम रेप्लिकेटेड न्यूटन्स डेली? Is it not the best place which has got the least accidents and it's got wide roads? The Rajpath is as big. हम लोग भारत में don't think out of the box, and that is why the whole problem arises with us. But fortunately, with the present leadership, including the Prime Minister and many of the bureaucrats, they have started thinking out of the box. और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग have traveled on this Delhi, Bombay, Vadodara Expressway. How many of you have traveled on that? So that has become a benchmark of construction. Now, if that is what roads have to be made, possibly, now what happens? You have fixed the speed on that road where easily your motor can go to 200 kilometers per hour. And Mr. Padi must have a look at that road which the Prime Minister inaugurated with the new guy. Everything which can possibly be there for road safety. मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने, उनके विचारधारा है एक ही जीवन मूल्यवान, जिसको बचाने के लिए आप लोग जानते हैं सभी जो नेचुरल कैलामिटी आता है, जो हमारे वहाँ आपत आता है, अभी जो आप लोग देखे हैं, हम बैठे थे वहाँ बात कर रहे थे, जैसे बाहर ट्रेन एक्सीडेंट में उड़ीसा को बहुत सफलता मिली है। आज यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यहाँ दो पद बोलने के लिए मुझे यहाँ बोलने के लिए जो आज सुযোগ मिला है, मैं इसीलिए फिकी को और यहाँ बैठे हुए सबको मैं दिल से आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है कि फिकी ने राज्य भागीदार से रूप में ओडिशा सरकार के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन सड़क सुरक्षा पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर प्रकाश डालेगा। सड़क दुर्घटनाएं हम सभी के लिए चिंता का कारण है, एक गंभीर चिंता का निश्चित रूप में बहुत चिंता का कारण है। देश भर में साल में करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों से अपनी जान गंवा देते हैं। ओडिशा में भी हर साल 5,000 से ज्यादा लोग सड़क हादसों से मारे जाते हैं। इसका सड़क दुर्घटना से पीड़ितों के परिवार और हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सड़क सुरक्षा हमारी सरकार के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। ओडिशा में माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने, जो एक दूरदृष्टि संपन्न नेता है, हमारे
हमेशा वो कहते हैं हर जीवन अनमोल है। इसी आदर्श के साथ हमने अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए 4E रणनीति अपनाई है। प्रवर्तन, शिक्षा, सड़क इंजीनियरिंग में सुधार और आपातकालीन देखभाल। मुझे यहाँ बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा किए गए ऑडिट के दौरान ओडिशा को उच्च प्रदर्शनकर्ता में रूप में वर्गीकृत किया है। सड़क दुर्घटनाओं में को रोकने के लिए उद्देश्य से ओडिशा सरकार ने 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक 2023 तक जीरो फैटेलिटी वीक मनाया जाता है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह सप्ताह के दौरान सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत में बहुत कमी आई है। दुर्घटना पीड़ितों के मदद करने के लिए, आम जनता को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार ने लागू की है। सोलासियम फंड योजना, स्ट्रीट वेंडर नीति, आउटडोर विज्ञापन नीति, जिनकी दुर्घटना में कम करने में बड़ी भूमिका है। ओडिशा की कई नीति विधियों की समिति द्वारा अत्यधिक सराहना की गई और देश के लिए अन्य राज्यों के भी इसका पालन करने की सलाह दी गई है, जैसे कि प्रोजेक्ट रक्षक, प्रोजेक्ट वाहक, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा, शॉर्ट फिल्म महोत्सव, साइनेज का ऑडिट आदि। यात्रियों की सुरक्षा के बढ़ाने के लिए ओडिशा सरकार ने 33 मौजूदा ट्रॉमा सेंटर के लिए अलावा जैसे जिला में ट्रक टर्मिनल के लिए निर्माण करने के लिए सरकार 55 और ट्रॉमा सेंटर स्थापित कर रहे हैं। एनफोर्समेंट के लिए सीसीटीवी के विस्तार करने के लिए प्रक्रिया भी जारी कर रहे हैं। सभी जानकर खुशी हुई ओडिशा सरकार जैसे हर जिले में हम लोग ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर का काम कर रहे हैं। इस अवसर पे मैं मानव जीवन को बचाने के लिए ओडिशा सरकार के साथ विकसित करने के लिए आज फिक्की का प्रेसिडेंट और सभी मेंबर का स्वागत करती हूँ। सब लोग मिलके आज जो प्रोग्राम बनाए हैं, इसमें सब लोग मिलके जैसे हमारा सड़क सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसको सब मिलकर बदलावा लाएंगे। मैं एक बात बोलती हूँ, जो सारे मंचे से अतिथि बोले, जे हम लोग सोचते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि गांव में सब लोग हेलमेट यूज करने के लिए हम जब हमारा नीति नियम लागू करते हैं, सब लोग सोचते हैं हम हाईवे पर जाएंगे तो वहाँ हमको हेलमेट का यूज करना पड़ेगा, सीट बेल्ट का करना यूज पड़ेगा। लेकिन गांव में जाते हैं, गांव का रोड हो या फिर जिस रोड में हम जाते हैं वहाँ सीट बेल्ट अगर नहीं लगाएंगे और जैसे हेलमेट अगर यूज नहीं करेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत नुकसान होता है। और हम लोग जानते हैं जैसे 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स लोग अगर गाइड नहीं करेंगे और वो बच्चे लोग को अगर हम पेरेंट्स नहीं गाइड करेंगे तो एक्सीडेंट का, मौत का केस भी बढ़ता है। अगर अवेयरनेस होगा, पेरेंट्स अवेयर रहेंगे, हम लोग अवेयर रहेंगे, जैसे सर रूडी साहब बताए, हमारा ड्राइवर को हम बोलेंगे और शायद हम सब लोग को भी हम अवेयर करेंगे, जो पास में हो, जो दूर में हो, अवेयर सबको करना पड़ेगा है। और आज लगभग 4 लाख एक्सीडेंट्स में लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई और दुनिया में भारत का स्थान तीसरा है इस हादसे को लेकर। और देश के प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी जी और देश की सरकार बहुत चिंतित हैं और कई सारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। और मुझे लगता है आज फिक्की के इस आयोजन में सड़क सुरक्षा पर जो ये वार्ता हुआ, ये संवाद हुआ, अपने आप में अद्भुत है। और हमारी ये दायित्व है कि इस विषय को हम गांव-गांव तक पहुंचाएं। सर, ये जो रोड पर एंक्रोचमेंट होती है उनकी वजह से सेफ्टी में देखिए, प्रॉब्लम आती है, उसके बारे भारत में एक ऐसा माना जाता है कि सड़क बनती है लोगों के दुकान और घर बनाने के लिए, जो कि गलत है।
और ऐसा लगता है कि शहरों में भी जो सड़कों का निर्माण होता है वो शॉपिंग आर्केड का रूप ले लेता है और लोग अपना दुकान सड़क पर बना देते हैं। इस पर कानूनी रूप से बड़े निर्णय की जरूरत है। भारत की सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। सर, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को लेकर गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है? मतलब उनको हम कैसे एनकरेज करेंगे कि और वो इंडियन सेंट्रिक रोड्स के नहीं, वो अनुसंधान जारी रहता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जो रोड सेफ्टी के मानक हैं निर्माण के लिए, उसका अनुपालन सरकार कराएगी। सर, ऑपोजिशन आज जो हमारा रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें मैं एक बार बोलती हूँ जो हमारे जैसे जानते हैं जो उड़ीसा हरदम नेचुरल कैलामिटी को सफलता के साथ काम करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में उड़ीसा हरदम सक्सेस होता है और रोड सेफ्टी में जैसे हम हर जिला को फोकस करते हैं, हर जिला में ट्रक टर्मिनल करने के लिए सोचे हैं, हर जिला में ट्रोमा केयर सेंटर करने के लिए सोचे हैं, हर जिला में हम जो ब्लैक स्पॉट है वहाँ रक्षक ट्रेनिंग देते हैं और आशा करते हैं जो 18 साल से नीचे जो बच्चे जो हेलमेट यूज नहीं करते हैं और लाइसेंस जिसके पास नहीं है उसको हम कड़ा चेकिंग करते हैं और आशा करते हैं जैसे एक जीवन मूल्यवान है उसी जीवन को कैसे बचाएंगे उसके लिए हम लोग कोशिश करके रोड सेफ्टी कार्यक्रम को हम सक्सेस करने की कोशिश करेंगे। मैम, उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या न्यू अप्रोचेस इम्प्लीमेंटेशंस लाए हैं आफ्टर दैट ट्रेन एक्सीडेंट जो अभी रिसेंटली हुआ था उसके बाद? देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट हरदम जो नया रूल आता है उसको लेकर हम लोग सब नया काम करते हैं। उसके लिए हम जरूरी है जैसे हम आप लोग जानते हैं बहना का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे जो जिस स्पॉट में हुआ उसमें उसी गांव के लोग सबसे ज़्यादा काम किए थे और उड़ीसा गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे अच्छा काम करके हरदम सफलता सामने है। इसलिए